Today we are going to study the psychoanalytic approach of Freud. So after studying type cum approach, trait approach, and type cum trait approach, now there is new personality theory which is psychoanalytic approach of Sigmund Freud, and this is one of also applauded theories of personality. This approach for understanding and knowing about personality belongs to the school of psychoanalysis, and the famous psychologist Sigmund Freud is said to be the propounder of the school of the thought. So let us try to have uh, look at his ideas. In the Freudian theory, it is said that human mind is structured of two main parts, the conscious and the unconscious mind, जो कि हम समय समय पर मूवीज में भी देखते रहते हैं कि हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है जिसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो हम इजीली देखते हैं, समझते हैं, और जिससे मतलब जो हमें सामने से लाइवली दिख रहा होता है, जबकि अनकॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमारी हिडन डिज़ायर्स होती हैं, हिडन विशेस होती हैं, होप्स होती हैं, हमारी मेमोरीज होती हैं, जिनके बारे में हम कभी कभी अवेयर भी नहीं होते हैं, येट द अनकॉन्शियस माइंड ऑलवेज इन्फ्लुएंस अवर बिहेवियर। और जो फ्रेड थे उन्होंने क्या किया कि जो साइकोलॉजी थी माइंड की, उसको एक टिप ऑफ द आइसबर्ग की बात करी। उन्होंने कहा कि जो हमारा माइंड है इट इज़ लाइक एन आइसबर्ग, जो कि पानी में डूबा रहता है जब, तो जो थोड़ा सा ऊपर टिप का पार्ट होता है दैट इज अवर कॉन्शियस माइंड विच इज एक्चुअली विजिबल ऑन द वाटर, वाइल जो टाइनी पोर्शन है, जबकि जो ह्यूज एक्सपेंस होता है जो कि आइस का विच इज हिडन अंडरनीथ the water, it represent our unconscious mind. Here you can see it from the picture. This is our conscious mind, a tiny portion of the ice which you can see above the sea, and this is our unconscious mind. But according to Fred, the unconscious behavior being 9 by 10 part of the total behavior, it always dominates the total behavior aspect and personality makeup of the individual. So according to Sigmund Freud, the unconscious mind tha, it play a major role in personality makeup of an individual. Embraced 10% is our conscious mind, what we see, but 90% is our unconscious mind, which color our behavior of the personality. Now, main point in the theory was the Freud proposed a tripartite model of the human mind, which composed of ID, ego, and superego. So, I'll explain it to you with the diagram. See, this is ID. It is connected to ego, and ego is again connected to सुपर ईगो। अब हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। आईडी क्या है? आईडी इज लाइक चाइल्ड। अगर आप एक छोटे बच्चे की बिहेवियर को देखिए तो व्हाट ही डू, वो कोई भी चीज करता है, ही डू इट फॉर प्लेजर सीकिंग, मतलब उसको अच्छी लगती है, उसे राइट रॉन्ग से मतलब नहीं होता है, ही नेवर कंसिडर एनी रूल्स, द ओनली गोल ऑफ अ चाइल्ड इज टू हैव सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज नीड्स। तो यही हमारी आईडी होती है, यही हमारी पर्सनालिटी, हमारे माइंड की आईडी होती है। नेक्स्ट इज ईगो। ईगो आपको कह सकते हो, ईगो इज लाइक अडल्ट। ईगो को पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो व्हाट ईगोज द रोल ऑफ ईगो इज इट एक्ट एज अ पुलिसमैन टू चेक द अनऑफुल एक्टिविटीज ऑफ द आईडी। बिकॉज आईडी क्या करती है, इसका तो मेन काम यही है कि उसे प्लेजर लेना है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है चीजें सही हैं या गलत है। बट अडल्ट इट एक्ट एज अ it follows the principle of reality and acts with intelligence. It controls the ID and balance it by selecting and deciding which appetites have to be satisfied and which way these are to be satisfied. And the third is super ego. Super ego आप इसको कह सकते हो spiritual या old। बूढ़े लोग जिनका आपने देखा होगा कि उनके लिए प्लेजर से इंपॉर्टेंट होता है परफेक्शन, तो परफेक्शन इज द गोल फॉर सुपर ईगो। इन्हें प्लेजर सीकिंग से मतलब नहीं होता है, दे ऑलवेज दे नेवर कह सकते हो कि it is completely idealistic, it is ethical moral arm of the personality, it is a decision making body, decides which is good or right, virtue or good standard of the society that it accepts। मतलब ये टोटली वैसे काम करती है जैसे हमारे सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग ही हमारी पर्सनालिटी वर्क करती है। सी, दिस इज आईडी। ID is our instinct.
इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, दोनों ही हो सकती हैं. एंड इट्स गोल इज टू सीक प्लेजर. ईगो क्या है? इट इज रियलिटी. रियलिटी इज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उसे पता होता है. सो इट बैलेंस बोथ. एंड सुपर ईगो इज मोरालिटी. इसका गोल है परफेक्शन. और परफेक्शन किन चीज़ों का? सोसाइटल नॉर्म्स का. मतलब जो हमारी सोसाइटी कुछ के जो नॉर्म्स होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल लेवल के होते हैं, धार्मिक होते हैं, बिल्कुल आदर्श होते हैं, वो उसकी बात करते हैं. तो ईगो बेसिकली क्या करती है कि आईडी और सुपर ईगो के बीच का बैलेंस बनाती है. अकॉर्डिंग टू फ्रेड, जिन लोगों की ईगो अच्छी होती है और वो दोनों को बैलेंस कर लेती है, वो एक बैलेंस पर्सनालिटी के लोग होते हैं. लेकिन अगर अगर आपकी पर्सनालिटी पे ईगो वीक है, तो या तो आईडी या फिर सुपर ईगो, दोनों ही ईगो पे वर्क करके पर्सनालिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं. कैसे? वो इंडिविजुअल्स जिनकी स्ट्रॉन्ग पावरफुल ईगो होती है, उनकी बैलेंस पर्सनालिटी होती है, क्योंकि वहां पे ईगो जो है वो केपेबल होता है टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन सुपर ईगो एंड आईडी. ठीक है. बट अगर इंडिविजुअल की एक ईगो वीक होती है, यानी उसको राइट और रॉन्ग की का मतलब नहीं समझ में आता है, सो वहां पे ही इज बाउंड टू हैव अ माल एडजस्टेड पर्सनालिटी. और वहां पे दो केसेस हो सकते हैं. पहला केस ये है कि उसकी सुपर ईगो जो है वो ईगो से ज्यादा होगी. अगर ऐसा होगा तो वो परफेक्शन की तरफ भागेगा, अपनी विशेस और इम्पल्सेस को रिप्रेस करेगा और उसकी पर्सनालिटी न्यूरोटिक हो जाएगी. न्यूरोटिक का मतलब है वो सनकी हो जाएगा, परफेक्शन के पीछे भागेगा और एक नॉर्मल बैलेंस लाइफ नहीं जिएगा. और सेकंड केस ये होता है कि अगर उसकी आईडी ईगो से ज्यादा बेहतर है, यानी कि प्लेजर सीकिंग बात वो ज्यादा कर रहा है, देन ऑल्सो ही विल हैव अ डेलिक्वेंट पर्सनैलिटी. डेलिक्वेंट मीन्स कि क्रिमिनल पर्सनैलिटी हो जाएगी, जहां पर वो सही और गलत में अंतर ही नहीं सीखेगा और उसकी पर्सनैलिटी में सिर्फ प्लेजर लेना होगा. सो इस तरीके से फ्रेड ने पर्सनालिटी की बात करी कि इस तरीके से पर्सनालिटी डिवाइडेड होती है. एंड the above mentioned, all the three constituents of personality always play a significant role in deciding the personality of an individual. तो आई होप आपको सिगमेंट की साइको एनालिटिक थ्योरी समझ में आ गई होगी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानधारा. प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने नोट्स आप बनाते रहिए. थैंक यू.